Hello student, how are you? I hope you all are happy, safe at your home. My dear student, we were reading some points related to election. First of all, today I want to tell you about the EVMS machine. So, let us see and listen to me carefully. Nowadays, in the general and state elections, electronic voting machine, short form is EVMS, are used instead of ballot papers, which were used earlier. EVMS reduce the time, reduce means कम करना, in both casting a vote and declaring the result compared to the old system. It is not possible to vote more than once by pressing the button again and again. As soon as a particular button on the balloting unit is pressed, the vote is recorded for that particular candidate and the machine gets logged. Vote counting is very fast and the result can be declared within 2 to 3 hours as compared to 30 to 40 hours under the ballot paper system. These are the example of the countries Nepal, Bhutan, Namibia and Kenya have also purchased EVMS manufactured in India. You can see this picture. A woman learning how to cast her vote using the electronic voting machines EVM. So, you can see another picture. A woman voter exercising her franchise on an electronic voting machine. So, the Election Commission of India was formed on 25th January 1950. Remember this point? On 25th January 1950 formed Election Commission of India. Its function is to administer the election procedure in India. It is the responsibility of the Election Commission to make sure that elections are conducted in a fair and transparent manner. So, what is the quality of EVM machine? So, let us see. Electronic voting machines and its short form EVM. It is a device used for conducting the elections electrically. It consists of a ballot unit and control unit. It is also 100% tamper proof. Its quality is speedy voting, easy to operate, security proof, low operating cost, no ballot paper used, less manpower required. So now we are going to discuss another point related to election. Number 9. Once all the votes have been counted, the returning officer declares the candidate who secures the maximum number of votes as elected. Once all the votes कि जितने भी एक बार जितने votes होते हैं have been counted कि उनको काउंट किया जाता है, गिना जाता है किसके द्वारा? रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा. डिक्लेयर्स यानी प्रोक्लेम, घोषणा करना. द कैंडिडेट, वो कैंडिडेट की घोषणा करता है. हु सिक्योर्स यानी कि जो वोटिंग लेता है, सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करता है. द मैक्सिमम जो हाईएस्ट वोटिंग होती है उसको सिक्योर करता है. नंबर ऑफ वोट्स कि जितने भी वोट्स आते हैं एज इलेक्टेड कि जो भी चुना गया है उसके पास जितने भी वोट्स आते हैं मैक्सिमम उसको वो सिक्योर करता है. द विनर आल्सो गेट्स ए सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम. और जो ये विनर होते हैं उसके अंदर हिम यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके द्वारा उसको सर्टिफिकेट मीन्स प्रूफ किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है कि तुम विनर हो. Now 10th point is every elected person goes to the respective house. रेस्पेक्टिव मीन्स जो पर्टिकुलर जो संबंधित है, स्पेशली जो उससे हाउस से संबंधित होते हैं लाइक ये लोकसभा और असेंबली से जो रिलेटेड होते हैं वो इलेक्टेड वो पर्सन वहां जाते हैं. to which she या he has been elected and takes the oath of office. तो जो selected हो गए, जो elected हो गए जो लोग, उसमें woman भी हो सकती है, man भी हो सकता है, वो चुने जाते हैं और takes the oath. oath means वो या swear word कि जो वो शपथ लेते हैं of office, उस ऑफिस के लिए शपथ लेते हैं. she या he then becomes a member of that house.
और जो भी शी है, वुमेन है या मैन है, वो बन जाते हैं उस मेंबर के, किसके, उस हाउस से रिलेटेड MP या MLA वो बन जाते हैं. Let's see how to select them. So listen to me carefully. First procedure is simple majority system. देर आर 2 क्राइटेरिया. इसके अंदर 2 क्राइटेरिया होते हैं. क्राइटेरिया इन स्टैंडर्ड, मापदंड होते हैं. ऑन विच द विक्ट्री, उनकी विजय के, ऑफ ए कैंडिडेट, एक कैंडिडेट के, इन एन इलेक्शन इज डिसाइडेड, कि जो डिसाइडेड मीन्स जो रेजोल्यूशन है, जो निश्चय है, निर्णय है, वो इलेक्शन उसको स्थापित करता है. नाउ एब्सोल्यूट मेजोरिटी, की जो अपनी कंप्लीट जो उनका बहुमत होता है, मीन्स सिक्योरिंग मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, कि जितने भी टोटल वोटिंग हुई है उसके आधे से भी ज्यादा उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट इज की सिंपल मेजोरिटी मीन्स सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स. सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है कि वो सिक्योर करे, वो सुरक्षित करे जो वोटिंग हुई है उसके हाईएस्ट नंबर. दस इस प्रकार सिंपल मेजोरिटी इम्प्लाइज होता है कि इंडिकेट करती है या इम्प्लिसिटी करती है, मतलब संकेत करती है कि दैट द विनिंग कैंडिडेट मे और मे नॉट हैव सिक्योर्ड मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड. इसका मतलब ये है कि जो मेजोरिटी है वो ये संकेत करती है, इंडिकेट करती है कि जो विनिंग कैंडिडेट है वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता सिक्योर्ड यानी ऑब्टेन्ड, सुरक्षित या प्राप्त करना, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल, कि जितनी भी वोटिंग हुई है उसके टोटल नंबर से उसके आधे से ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम ऑफ इलेक्शन. और जो हम जनरली जो कॉमनली यूजुअली जो दिखाई देता है वो इलेक्शन का ये सिस्टम है. इट इज यूज्ड इन आवर लोकसभा एंड विधानसभा. और ये कहाँ यूज किया जाता है, हमारी जो लोकसभा है और विधानसभा. विधानसभा मतलब स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जो अपने स्टेट की जो असेंबली इलेक्शन होती है रिलेटेड टू विधानसभा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्टिट्यूएंसी. जो कंस्टिट्यूएंसी है उसका मतलब होता है जो अपना निर्वाचन क्षेत्र होता है, चुनाव क्षेत्र होता है, जो अपना इलेक्शन एरिया होता है. इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी रेफर्स टू ए टेरिटोरियल एरिया, कि जो ये कंस्टिट्यूएंसी जो अपना निर्वाचन क्षेत्र है वो किससे रिलेटेड होता है, किसको उल्लेख करता है, वो जो अपना रीजनल और नेशनल क्षेत्र होते हैं, प्रादेशिक क्षेत्र होते हैं, उनको रेफर किया जाता है. विच इलेक्ट्स, जो कि चुने जाते हैं, एंड सेंड्स वन रिप्रेजेंटेटिव आइदर टू द पार्लियामेंट और टू द स्टेट असेंबली, कि जो चुने जाते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी चीज का दिखाते हैं, जो खड़े होते हैं अपने कैंडिडेट, आइदर टू द, या तो उनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है, और टू द स्टेट असेंबली, या उनको स्टेट असेंबली में भेजा जाता है. एन MP रिप्रेजेंट्स, वो अपने क्या थे, MLA थे. और जो MP रिप्रेजेंट करते हैं मतलब वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अपनी पार्लियामेंट्री उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं इन द लोकसभा. लोकसभा के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि वो मेंबर्स कौन से होते हैं, MP होते हैं, जो मिनिस्टर पार्लियामेंट होते हैं. एंड वाइल, जबकि जो MLA होते हैं, MLA किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द विधानसभा, की जो MLA होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूट यानी प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को करते हैं, जो कि विधानसभा के अंदर है. आफ्टर इलेक्शंस ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी. ओके, अब जब इलेक्शन के अंदर जो ड्यूटी लगती है वो ऑफिसर्स, वो किस किस प्रकार के ऑफिसर्स होते हैं, लेट अस सी. यू कैन सी दिस पिक्चर, वन ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी. In India, the election commission is responsible for conducting election in the country. कि जो अपना इंडिया है उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन है, जो अपना निर्वाचन आयोग है, वो रेस्पॉन्सिबल यानी काउंटेबल, जिम्मेदार होता है फॉर कंडक्टिंग यानी मैनेज करना, किसी का संचालन करने के लिए, जो इलेक्शन का अपनी कंट्री इन द कंट्री के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट करना होता है, मैनेज करना होता है, उसका जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो अपना निर्वाचन आयोग होता है. दिस इंडिपेंडेंट यानी होता है सेल्फ सफिशिएंट, कि जो स्वतंत्र हो पर्सनली, जो बॉडी इज हेडेड यानी जो लीड करता है, जो मुख्य कार्य करता होता है, बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन. इट्स शॉर्ट फॉर्म इज CEC, कि चीफ इलेक्शन कमीशन मीन्स होता है मुख्य चुनाव आयोग.
हु इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो कि अपॉइंटेड यानी अरेंज्ड, जिसको नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, अपने प्रेसिडेंट के द्वारा। अंडर द सीईसी, की जो अपना चीफ इलेक्शन कमीशन है, आर वेरियस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स ईच इज, कि जो अपना ये मुख्य चुनाव आयोग है, वो जो वरियस अपने जो स्टेट इलेक्शन होते हैं, अलग अलग राज्यों में डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जैसे कि ईच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन इन हिज या हर रेस्पेक्टिव स्टेट, जो अपना रेस्पेक्टिव स्टेट है उसके अंदर कोई भी वुमेन या मैन है, वो इलेक्शन के अंदर वो उसका रेस्पॉन्सिबल होगा, जिम्मेदार होगा। एट द कॉन्स्टिट्युएंसी लेवल, कि जो अपना निर्वाचन के लेवल है, अपना जो चुनाव क्षेत्र है, द रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंटेड, कि जो वो अपॉइंट करता है, अरेंज करता है बाय द इलेक्शन कमीशन, और वो किसके द्वारा किया जाता है, जो अपना निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा उसको नियुक्त अपॉइंट किया जाता है, इज द मैन ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन, और वो एक मैन पर्सन होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है जितने भी अपने इलेक्शंस हैं उनको कंडक्ट करने के लिए। ईच पोलिंग बूथ हैज अबाउट 5 ऑफिशियल्स, कि जो ईच पोलिंग मतलब प्रत्येक जो अपना पोलिंग बूथ है उसमें अबाउट नियर बाय 5 ऑफिशियल्स होते हैं, उसमें 5 कर्मचारी होते हैं। द प्रेसिडिंग ऑफिसर इज एन इंचार्ज ऑफ द बूथ, और जो सबसे पहले जो इंचार्ज होता है वो होता है प्रेसिडिंग ऑफिसर। फॉर अदर पर्सन्स, और जो 4 दूसरे पर्सन्स होते हैं, कोल्ड पोलिंग ऑफिसर असिस्ट हर या हिम, या जो लेडी भी हो सकती है या जेंट्स भी हो सकता है, उसको असिस्ट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं 4 और जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। आउटसाइड द पोलिंग बूथ पुलिसमैन आर पोस्टेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और बाहर जो पोलिंग बूथ के अंदर कौन उसको मेंटेन करता है, अपने लॉ और जो ऑर्डर्स हैं उनको पुलिसमैन करते हैं, जो कि पहले से ऑलरेडी पोस्टेड किए जाते हैं। So my dear student, these are the points related to our elections. Okay, I hope you understood all the points. So in our next video, we will discuss our remaining part. Till now, have a nice day.